and a very warm welcome to all of you. Thank you for joining us today. We are truly glad to have you here. Today's session is about something that plays a crucial role in shaping your career, often more than we realize, your resume. In today's competitive world, opportunities don't always go to the most talented person in the room. They go to the person who can present their talent clearly, confidently, and professionally. Your resume is not just a formality, it's your first impression, your entry ticket, and in many cases, your deciding factor. This workshop is designed to help you understand what a resume truly is and what it isn't, why a strong resume is essential, how recruiters evaluate resumes in just a few seconds, the role of ATS systems, and how to choose the right resume format that works for you. To bring this learning to you, this workshop is proudly presented by Upsync. Upsync is a dedicated e-learning platform focused on building competence in students and preparing them for the workforce. With 10,000 plus students trained, 6,000 plus students placed, and a mission to train 1 lakh plus students by 2030, Upsync is committed to empowering learners with industry relevant knowledge, skills, and career readiness. And guiding us through today's session, we have an expert who understands resumes from a recruiter's perspective. It gives me great pleasure to introduce our mentor for today, Mrs. Hina Suresh, an experienced human resource professional with over 11 years of expertise in strategic HR business partnering and core HR operations, and currently working as an assistant manager at Aries Technology. With her extensive experience in evaluating candidates and hiring decisions, today's session will give you a real insights into what recruiters actually look for in a resume. With that, I request all of you to stay attentive and make the most of this session. I now hand over the workshop to Hina ma'am. Over to you, ma'am. Thanks, Anurag. Hi, guys. Good evening, everyone. Uh, my name is Hina Suresh, as Anurag introduced, and I have an overall experience of around 12 years in human resources, guys. So currently, also, I am a working professional, but definitely, I have been a mentor for many students like you guys for the past 2.5, 3 years now. Okay. Of course, I am associated with Upsync as well now, right? And for a very long time, in fact, it's been like 2 years I've been associated with these guys, Upsync as well. So I am their HR mentor. Okay. So of course, students who basically like human resources or want a career in human resources in future, want to understand more about human resources, Upsync has amazing courses for human resources, which is led by me. Okay. So, and of course, they have other fields as well, and there are talented and of course professional corporate mentors for those courses as well. Definitely, after this session, any one of y'all who would be interested in any of the courses and would want to take live mentorship from us, understanding how the corporate world works nowadays, and how human resource or any other field is related nowadays to the corporate world, and how you all can go ahead and understand the functions and HR basically does. So definitely you all can enroll for the program. This session will be for around 50 minutes, guys, today. Okay. And after that, the last 10 minutes, I'll be taking questions. Okay. So I saw someone raising a hand. So you will have to hold on, guys. Okay. 50 minutes just understanding what resume building is. Okay. And then after that, definitely last 10 minutes, I'll be very happy to take all the questions. Okay. Um, just one thing, I think I'm not sure whether everyone is comfortable in English. That is the only thing. So I will mix my English and Hindi. मुझे ऐसा लग रहा है हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज जो सब कंफर्टेबल होंगे, ठीक है? डेफिनेटली तो वी विल मिक्स बोथ द लैंग्वेजेस बिकॉज आई वांट एवरीवन टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस सेशन. Okay, guys? All right. Let's start, guys. Of course, understanding about why a resume is important. So, guys, and why it comes from me. Because as I told you, I have an experience of 12 years into human resources, and currently also it is an ongoing experience that is there.
रेज्यूमे एज एन एचआर इज लाइक हम डेली देखते हैं इतने सारे रेज्यूमेस. ओके, of course when I started off my career I was in the hotel industry, then I went to education industry. Current I'm in the IT industry. Okay, now guys, what happens when you're in different industries? You look at different CVs and different resumes, right? हम अलग अलग रेज्यूमे देखते हैं, अलग अलग सीवीज देखते हैं. ऑल द टाइम ऑन लिंक्डइन people keep sending their resumes and CVs to us all the time, even today. Okay, because of course they feel कि कहीं opportunity होगा which will suit their profile, we could definitely recommend. Okay, so my main agenda of saying this कि हम बहुत सारे CV और resume देखते हैं, बहुत ज्यादा. ठीक है, जब हम इतने सारे सीवी और रेज्यूमे देखते हैं वी इंस्टेंटली लुक एट सर्टेन थिंग्स. हम मेरे पास या कोई भी एचआर के पास उतना टाइम नहीं होता है जो रिक्रूटमेंट करते हैं कि वो 3 4 5 पेज के रेज्यूमेस देखते रहे. इनफैक्ट कहीं से भी कोई रेज्यूमे दिखे उतना हम एनालाइज नहीं करते हैं डिटेल में. नन ऑफ अस डू इट. ओके, बट व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट वी सी जिसके वजह से हमको लगता है कि रेज्यूमे अच्छा है या बुरा है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक इन टुडेज सेशन. ओके, जिससे इंस्टेंटली you guys can put those points in place. एंड बाकी चीजें आप लोग बहुत फैंसी नहीं बनाओगे रेज्यूमे को. जैसे हम लोग को यूजुअली लगता है कि एटीएस आ गया, अब रेज्यूमे को बहुत फैंसी बनाना चाहिए. फैंसी नहीं है देन माय रेज्यूमे वोंट गेट शॉर्टलिस्टेड. दैट इज द माइंडसेट दैट वी हैव, राइट? But frankly, guys, fancy resumes are not something that we look at. Okay, हमको एक अच्छा रेज्यूमे चाहिए होता है जो हमारी रिक्वायरमेंट मीट करे. दैट इज द एजेंडा एट द एंड ऑफ द डे विच यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड. वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ रेज्यूमे, आपके माइंड में यही आना चाहिए कि ओके, व्हाई एम आई अप्लाइंग देयर, व्हाट डू आई फील कि वहां के एचआर और कंपनी क्या देख रहे होंगे, व्हाट डू दे नीड, एंड अकॉर्डिंगली आई विल जस्ट पुट इन माई कवर लेटर एंड माई रेज्यूमे एंड सेंड इट ऑफ. एंड अगर उनको ऐसा लगा कि उनकी रिक्वायरमेंट मीट हो, दे विल जस्ट गिव इट. Okay, so they will just call me for the job. Okay, okay, so let's start, guys. सबसे पहले I want to understand from you guys. Okay, um what is a resume according to you? What is a CV and what is a resume? If any one of you all could just tell me क्या होता है resume and क्या होता है CV? Yes, Ruchi, you want to answer that? Hmm. अकॉर्डिंग टू मी रेज्यूमे दैट मीन्स जो भी अगर हम कहीं पे सॉफ्टवेयर का डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। आई हम्म. एम इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग कर ही रही हूँ अभी। तो फिर हम्म. अगर अभी हम अपना रेज्यूमे बनाते हैं तो जो भी मेरा इम्पोर्टेंट स्किल होगा इंटर्नशिप के लिए, अगर अभी हम इंटर्नशिप के लिए रेज्यूमे बना के डाल रहे हैं तो फिर जो भी मेरा स्किल होगा जो कुछ अच्छा होगा जिससे हम्म. हमको मिल सकता है जिस कंपनी में हमको चाहिए उस हिसाब से, मतलब एक सिंपल सा, और उसमें अच्छा दिखना भी चाहिए और स्किल्स वगैरह होना चाहिए ताकि पता चले कंपनी को और कंपनी मुझे चूज करे इंटर्नशिप के लिए। ओके, रेज्यूमे ठीक डेट है. मीन्स जिसपे मेरा डिटेल होता है, जिसपे बताया जाता है कि मेरे पास क्या स्किल है और मैं कहाँ से हूँ, क्या है नहीं, सारा कुछ। परफेक्टली फाइन. सो रेज्यूमे का ये मतलब होता है बेसिकली एज शी सेइंग, रेज्यूमे एक डॉक्यूमेंट है गाइस जो बेसिकली आपके बारे में सब कुछ बताता है, राइट? सो इट्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जिसके बारे में, इफ आई एम एवर टॉकिंग अबाउट अ रेज्यूमे, इट्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं रुचि को नहीं जानती हूँ, अगर रुचि मेरी कंपनी में कल अप्लाई कर रही है, जस्ट लुकिंग एट रेज्यूमे ऑफ रुचि और द सीवी ऑफ रुचि, आई शुड बी 100% बी एबल टू फिगर आउट कि ओके रुचि कहाँ पढ़ती थी, रुचि के क्या स्किल्स है, उसका क्या इंटरेस्ट है, आ, वो बेसिकली कहाँ रहती है, ओके, वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रही है, एंड विल शी बी सूटेबल फॉर दिस पोजिशन और नॉट, राइट? सो रेज्यूमे इज बेसिकली वो पर्सन के बारे में सब डिटेल्स होती हैं उसमें. इट्स अ डॉक्यूमेंट, राइट? बेसिक सब डिटेल्स मतलब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ पर्सनल डिटेल. ठीक है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, आप क्या टाइम पे सोते हो, that is not the details that we are ever expecting. Definitely, by all details, I mean all professional details like education, qualification, skills, जो required होता है एक HR को देखने के लिए. ठीक है, of course, again, very very important to understand this, guys. आपका रेज्यूमे और सीवी जब हम किसी को भेजते हैं तो एज आई टोल्ड यू, वो रेज्यूमे और सीवी कितना ऑन पॉइंट है, ठीक है, कितना अट्रैक्टिव है,
बाय अट्रैक्टिव आई मीन आपने ज्यादा कलर डाल दिया उसमें, अलग फॉन्ट साइज कर लिया कुछ, या आपने ज्यादा उसमें फोटोज डाल दी, सो वो अट्रैक्टिव हो गया, नहीं होता है गाइस, ओके। इफ आई वांट अ सिंपल सीवी, आप एकदम टाइम्स रोमन लो, एकदम सिंपल या कैलिब्री ले लो, या सिंपल एक वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना के उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके मुझे भेजो विद ऑल योर डिटेल्स जो एकदम पॉइंट पे है, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी गाइज। मुझे फोटोज या कलर्स अट्रैक्टिव नहीं लगता है रेज्यूमे में, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। हम ये साइड पे बैठे होते हैं तो इसलिए हमको नहीं समझ आता है। एज एन एचआर जिसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उसको पोजीशन क्लोज करना है, ओके। इफ यू आर अ रिक्रूटर, अगर आप एचआर में रिक्रूटमेंट कभी भी आप में से किसी ने भी कभी किया होगा या आपने सुना है, लाइक वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स, ये बहुत प्रेशर वाला जॉब होता है गाइस, ट्रस्ट मी। हमको अपने टारगेट्स मीट करने होते हैं, ओके। अब दिन में मेरे पास लिटरली थाउजेंड्स ऑफ सीवीज आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमे सीवीज, ओके। अब वो रेज्यूमेस जो थाउजेंड्स के इसमें आते हैं, आपको जेन्युइनली लगता है मेरे पास उतना टाइम होगा कि मैं सबका फॉन्ट, उसका कलर, उसकी फोटोज चेक करूं? आई डोंट हैव दैट मच टाइम। मेरी आईज जो है जब मैं रेज्यूमे ओपन करती हूँ सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स पे जाती है, दैट्स इट। वो पॉइंट्स अगर मुझे सूटेबल लगती है मैं इमिडिएटली कैंडिडेट को कॉल लगाती हूँ, ठीक है, या मैं ईमेल भेजती हूँ। मुझे वो सूटेबल नहीं लगता, आई इमिडिएटली स्विच टू द नेक्स्ट रेज्यूमे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम अ रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू टुडे, ओके। तो हमको बेटर समझ आएगा कि जो पर्सन एक दिन में 1000 सीवी देखता है, या जस्ट एग्जैजरेटिंग, मे बी नॉट 1000 बट एटलीस्ट 100 सीवी देखता है एक दिन में, उस पर्सन को एग्जैक्टली कितना टाइम होगा, सेकंड्स होंगे मेरा रेज्यूमे देखने में, एंड वो सेकंड्स में एग्जैक्टली वो क्या क्या चीजें पे उसका ध्यान जाएगा। सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड, ओके। अगेन, very one very important thing guys, I would want to call it out that जब भी हम एज कैंडिडेट्स हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक रेज्यूमे बनाया, मैंने 10 कंपनी में अप्लाई किया, ठीक है, बट मुझे कहीं से भी कॉल नहीं आया वो 10 कंपनी से, तो यू यूजुअली स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग। हमको यूजुअली सेल्फ डाउट होने लग जाता है, वी स्टार्ट फीलिंग कि अरे यार क्यों मेरा सीवी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, या क्यों मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, एंड मैं मैं तो एक्चुअली बहुत ज्यादा अप्लाई कर रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है, मेरा रेज्यूमे पक्का अच्छा नहीं बना है, आई एम श्योर मेरा रेज्यूमे बेकार बना है, इसलिए ये हो रहा है, ओके। गाइस, वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, देयर आर टू थिंग्स। मे भी ऐसा हो सकता है आपका रेज्यूमे बराबर नहीं बना है, इट इज नॉट कॉलिंग आउट द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, वो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग नो, बट दैट इज अ वेरी सेकेंडरी थिंग, ओके। फर्स्ट थिंग्स विच यू नीड टू फोकस ऑन जब भी आप अप्लाई करते हो गाइस, वो होता है कि आप जो प्रोफाइल के लिए फिट हो आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो क्या। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने जो है पढ़ाई की है मार्केटिंग एंड सेल्स की, ठीक है, एज अ फ्रेशर, या मैंने काम किया, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। एंड वहां पे जो जॉब है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कहीं पे भी सेल्स एंड मार्केटिंग का नहीं है, मतलब है बहुत कम है, बाकी चीजों का ज्यादा है, या एचआर ने क्लियरली मेंशन किया है जब वो जॉब का एड दे रही है कि मुझे फीमेल ही चाहिए, एंड मेल्स अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, या वो कंप्लीटली मेंशन करिए कि उसको 7 साल के पर्सन को एक्सपीरियंस होना ही चाहिए और ये क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, मेरे पास नहीं है बट फिर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो मोस्ट ऑफ द पीपल कैंडिडेट्स क्या करते हैं गाइस, उनको सब दिखा लिखा रहता है वहां पे, दे कैन एक्चुअली सी कि एचआर की क्या रिक्वायरमेंट है वहां पे, ओके, इट्स क्लियरली मेंशन्ड, बट फिर भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, ओके, स्टिल वी अप्लाइंग, स्टिल वी आर फीलिंग कि अरे कॉल नहीं आ रहा है, एंड देन वी फील कि अरे रिजेक्शन आ रहा है, मेरा सीवी खराब है। सी गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, आई गिव यू थंब रूल, प्लीज समझो ये बात, ये थंब रूल है गाइज, ओके, विच आई वांट बिफोर वी स्टार्ट विद रेज्यूमे, ये सब थंब रूल्स मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम अप्लाई करते हैं, तो ऑफकोर्स रेज्यूमे भेजना होता है एप्लीकेशन के लिए, बट एप्लीकेशन का एक रूल होता है, हर किसी को फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी का, वो जॉब प्रोफाइल का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना चाहिए। सो टुमारो इफ एनी वन ऑफ यॉल, आपको एक एचआर का कॉल आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आई मीन एज एन एचआर वी स्पीक टू सो मेनी पीपल, so many HRs call us for daily basis पे इंटरव्यूज के लिए। so I'll tell you how it works। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कॉल कर रही हूँ एज एन एचआर किसी को, ठीक है, मैं उसको बोल रही हूँ दिस इज माई कंपनी, दिस इज द प्रोफाइल दैट वी आर लुकिंग एट, इतनी हम सैलरी देने वाले हैं, ये लोकेशन है, वुड यू बी इंटरेस्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आई टेल यू, 90% लोग बोलेंगे यस मैम आई एम इंटरेस्टेड, ओके,
उसके बारे में मैं पूछूंगी, वो पूरा बता देगा, ठीक है। मैं उसको बोलूंगी ओके विल यू कम फॉर इंटरव्यू, बोलेगा ठीक है, आप मुझे ईमेल भेज दो, ठीक है, डिटेल्स के साथ ईमेल भेज दो। ये 90% लोग करते हैं गाइस, यू नो। द प्रॉब्लम इज, जब मैं उसको बोल रही हूँ, द फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, सच में एक्सपेक्ट करती हूँ, जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, ठीक है, जिसको सच में फिक्र है कि व्हाट वर्क आई एम गोइंग टू डू देयर, हु समवन हु इज रियली बॉदर्ड कि मेरा काम क्या होगा वहां पे, सबसे पहले मुझे पूछना चाहिए, मैम कैन यू प्लीज ईमेल मी द कंपनी प्रोफाइल एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन। दिस इज लाइक द फर्स्ट थिंग गाइस, जो 90% लोग कभी नहीं पूछते। मतलब ऐसा है कि लोग बस रेडी है काम के लिए आने के लिए, एंड टुमारो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे एक्चुअली कम एंड यू आस्क देम, यू नो, कि यू टेल देम कि ये प्रोफाइल है, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, मोस्ट ऑफ देम तो रेडी ही नहीं होंगे। मतलब दे आर, या तो मोस्ट ऑफ देम को पता ही नहीं है कि उनको क्या काम करना है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर मोस्ट ऑफ द एचआर जो है जॉब डिस्क्रिप्शन डालते ही हैं, आपको अगर डायरेक्ट कॉल आ रहा है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन मांगो, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन मांगो, कंपनी प्रोफाइल मांगो। अगर आपको डायरेक्ट कॉल नहीं आ रहा है बाई चांस, यू नो, एंड आप naukri.com या कोई एड पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है गाइस, प्लीज रीड इट, इट इज मेंट फॉर रीडिंग। आप लोग पढ़ते नहीं हो, ब्लैंकली ऐसी एक नहीं 100 कंपनीज में अप्लाई करते हो, ठीक है, एंड जब कॉल आता है आपको पता ही नहीं कॉल आया कहां से। डोंट डू दैट गाइस, आई मीन अप्लाई, आई एम नॉट सेइंग डोंट अप्लाई इन 100 कंपनीज, बट जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। अगर वो आपको लग रहा है आपके लिए सूटेबल है, देन यू अप्लाई फॉर दैट, ओके। ऑफ कोर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ओके, जब आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन से ही उठानी चाहिए, ठीक है। वॉट इज दैट आई विल टेल यू, बट माई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे लिए सूटेबल है, मैं ये काम कर चुका हूँ या कर सकती हूँ, मेरे प्रोफाइल से मैचिंग है, एचआर की रिक्वायरमेंट सूटेबल है मेरे लिए, देन गो अहेड एंड अप्लाई विद योर रेज्यूमे, okay. Now, the next important thing that we need to understand is what is the difference between a resume and a CV. Can any one of you all tell me what is the difference between a resume and a CV? क्या सेम होते हैं दोनों resume और CV, or is there a difference? From my understanding, Mm-hmm. CV is a full-on description of your skills and abilities that you can provide to a company. Okay. While a resume is just one-page description of what you have done and what you can do in a short form. Okay. Okay. That's true. That's true. Some we are close to that. Okay, thanks. Okay, so guys, अगर मैं सीवी की बात करूँ, as he rightly said, सीवी जो है बहुत डिटेल्ड वर्जन होता है। सीवी इज अ वेरी डिटेल्ड वर्जन, ओके। रेज्यूमे इज अ वेरी शॉर्ट वर्जन इफ यू सी, ओके। सीवी जो है वो बहुत लेंदी होता है, लाइक 2 pages to several pages इट कैन गो, ओके। रेज्यूमे जो है यूजुअली इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 2 पेज के ऊपर मत जाओ रेज्यूमे में, ठीक है। यूजुअली द शॉर्टर एंड अप्रोप्रिएट, मतलब शॉर्टर एंड ऑन पॉइंट इट इज बेटर, ठीक है। तो रेज्यूमे तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट होना चाहिए एंड ऑन पॉइंट होना चाहिए। ज्यादा बड़ा elaborate इज नॉट समथिंग दैट any one of us has the time to read also, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप सीवी यूजुअली देखोगे क्या होता है ना गाइस, सीवी में बहुत डिटेल्स होती है। सो देर आर रिक्वायरमेंट्स, आप यूजुअली कॉर्पोरेट्स के देखोगे या प्रोफेशंस के हिसाब से देखोगे। जब हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, कॉर्पोरेट जॉब्स की, रेज्यूमे इज समथिंग दैट वी नीड। हर कंपनी में आप रेज्यूमे ही देते हो, आप सीवी नहीं देते हो। सीवी यूजुअली कहाँ दिया जाता है, जब आप कोई रिसर्च की जॉब्स कर रहे हो, अकेडमिक का कोई काम कर रहे हो, टीचिंग, और पीएचडी यू आर डूइंग, ओके, और यू आर एनीवेयर इन द एजुकेशन, लाइक एज आई टोल्ड यू, एजुकेशन फील्ड से आप रिलेटेड हो, ठीक है। दैट इज वेर यू रिक्वायर अ सीवी, तब आपको सीवी की जरूरत होती है, ठीक है। सीवी बेसिकली ये होता है कि आप ना अपने स्किल्स पे उतना फोकस नहीं डालते हो, यू आर मोर फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी डिटेल दैट यू हैव डन। मतलब सब चीजों का आपका बहुत डिटेल में रहता है। जैसे कि आपके एजुकेशन आप पूरे डिटेल में डालोगे उसमें, ठीक है। इवन इफ गोज टू लाइक 4 to 5 लाइन्स, मतलब आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से, डिटेल में, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में, ठीक है। उसके बाद मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पब्लिकेशंस, आपने कौन से पब्लिकेशंस का रीड किए, बुक्स या रेफर किए हैं, कौन से प्रेजेंटेशंस पे काम किए, आपको कौन से अवार्ड्स मिले हैं, व्हाट एकेडमिक अचीवमेंट्स यू हैव। सो ये सब डिटेल में आप डालते हो सीवी में। रेज्यूमे में ऑल दिस
दिस इज नॉट रिक्वायर्ड गाइज. रेज्यूमे इज वेरी शॉर्ट. रेज्यूमे फोकसेस कि आपने कहाँ काम किया है, आपकी एजुकेशन क्या है, ना आपके स्किल्स क्या है. स्किल्स आर द मेन फोकस जब मैं रेज्यूमे पे बात करती हूँ तो, कि मेरे स्किल्स क्या है, बिकॉज everyone in the corporate is looking out for skills. Okay, for example, you are very good with Excel, or advanced Excel, or you have certain software knowledge which is extremely important for your job. ठीक है. So what is happening, आपका रेज्यूमे वो हाईलाइट करना चाहिए. ओके. सीवी में वो रिक्वायरमेंट नहीं. सीवी में मैं यूजुअली वो देखने जाती हूँ कि वो पब्लिकेशंस उसने कौन से रिसर्च में यूज किए हैं, एंड विच बुक्स दे हैव रिटन, विच थीसिस दे हैव रिटन. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग सीवी हैज. बहुत कंट्रीज ऐसी होती हैं गाइज जहां पे आप देखोगे उनको सीवी ही चाहिए होता है, कॉर्पोरेट्स में भी. ठीक है. इंडिया में दैट इज नॉट द केस. इंडिया में वी ऑल रिक्वायर रेज्यूमेस, बट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, जब भी मैं बात करूँ जब एचआर, आप दूसरे कंट्री में जाके अगर काम कर रहे हैं एंड वहां पे अगर एचआर आपको ईमेल डालती है कि प्लीज गेट योर सीवी विद यू, दैट इज व्हेन यू विल हैव टू कीप इट प्रिपेयर्ड. आपको डिटेल में, अगर फॉर एग्जांपल आपने थीसिस नहीं किया है, और ये सब नहीं किया, कीप इट ब्लैंक. आई एम नॉट सेइंग आपको भरना ही है अगर नहीं किया तो. आई एम जस्ट सेइंग दैट इज अ फॉर्मेट. इट्स अ डिटेल्ड फॉर्मेट. एवरीथिंग इज इन डिटेल. इट इज मोर अबाउट पर्सनल डिटेल्स एज मेंशन्ड, योर एजुकेशन, your work experience, research and publications. What are the professional memberships? So you may be a part of different professional groups or different memberships. Okay. Different awards that you have received. Okay. You have attended many conferences, many presentations you have made, and you have, at least, presented it in a group of people. That is all you need to mention. Plus detail में अगर आपको कोई languages पता है, okay, so that also you can mention. And skills of course you need to mention. ऐसा नहीं आप skills डालोगे नहीं, बट उसको इतने सारी चीजों में उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हम. ठीक है. बट हाउएवर रेज्यूमे इज वेरी कॉम्पैक्ट, इसलिए मैंने बोला 1 से मैक्सिमम 2 पेजेस तक ही रखो. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी समरी, सब्जेक्ट लाइन, एक्सपीरियंस, की स्किल्स, एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, दैट्स इट. उससे ज्यादा आप पुश नहीं करोगे रेज्यूमे में. ठीक है. डोंट पुट टू मच इन अ रेज्यूमे, बिकॉज रेज्यूमे बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो जाएगा ना, तो यू डोंट लाइक रीडिंग सच रेज्यूमेस, क्योंकि समझ नहीं आता है, उतना टाइम भी नहीं रहता है. जब समझ नहीं आता है ना, देन वी यूजुअली टेंड टू रिमूव दैट रेज्यूमे फ्रॉम आवर लिस्ट. हम यूजुअली उसको साइड कर देते हैं. वी डोंट स्पेंड सो मच टाइम ऑन दैट अगर क्लैरिटी नहीं है तो. ठीक है. अगेन, एज आई टोल्ड यू, सीवी जो है यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में जॉब एप्लीकेशंस के लिए कॉमन है. यूजुअली इफ यू आर गोइंग फॉर एकेडमिक, रिसर्च एंड मेडिकल करियर्स. हाउएवर रेज्यूमे इज यूजुअली इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया फॉर जॉब एप्लीकेशंस इन कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर्स. In India also, I have mentioned Asia, but in India also we usually go for resumes and corporates. And of course, if we are going for any academic, research, medical, again यहाँ पे भी हमको CV ही लगता है. Okay. Okay, I think this is something that I have already explained to you guys. Okay. All right. Okay. So guys, what are the things that we look at in a resume? जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ 2 या 3 चीजें ही देखती हूँ. Okay, when I'm looking at a resume, what do I exactly look at in a resume? Okay. For example, always remember one thing. मैंने आप लोग को बोला था job description से pick कीजिए. ठीक है. I'll tell you what. फॉर एग्जाम्पल, अभी एटीएस भी जैसे कि आ गया है हमारे पास. ऑलराइट, दैट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव एटीएस सॉफ्टवेयर नाउडेज. मेनी ऑफ द हमारी कंट्री उतनी अभी तक एडवांस नहीं हुई है गाइस. बहुत सारी कंपनीज अभी भी ऐसी है जहां पे एटीएस कुछ भी यूज नहीं होता है अभी भी. ओके. सो दैट टोटली डिपेंड्स, बट मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग इट. ओके. सो हम ऐसा ना सोचे, हम ये नहीं बैठ के सोच सकते कि अरे इसके पास एटीएस होगा कि नहीं होगा. रादर यू मेक अ रेज्यूमे विच विल बी एटीएस कंप्लायंट, और अगर कल जाके एटीएस नहीं भी हो तो भी आपका रेज्यूमे चल जाएगा. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि ऐसा टाइप का हम रेज्यूमे बना के रखें. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अब मेरे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एचआर हूं, मैंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन या एड डाला है, मैंने क्लियरली मेंशन किया है मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, उसको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस में, दैट इज गोइंग टू द कॉर्पोरेट्स, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए सेलिंग का. ठीक है. एंड ही शुड हैव नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दैट आई वांट हिम टू हैव नॉलेज अबाउट. ठीक है. ये 4 चीजें मेरे लिए बहुत जरूरी है. ऑफकोर्स उसने
अगर मैंने ये मेंशन किया कि उसका एमबीए होना ही चाहिए, वो भी फुल टाइम, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। सी गाइस, हमेशा याद रखो, जब भी एक एचआर की रिक्वायरमेंट होती है, देर आर सर्टेन थिंग्स जो हमको चल जाता है, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट नेगोशिएबल फॉर अस, कंपल्सरी है हमारे लिए, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा जॉब डिस्क्रिप्शन से कौन सी चीजें उसको चाहिए कंपल्सरी, कौन सी चीजें ऐसी जो चल जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने 4-5 चीजें बोली वो मुझे कंपल्सरी चाहिए। सो यू नीड टू सी टू इट कि आप अपने रेज्यूमे में जो चीजें उनको चाहिए वो चीजें हाईलाइट रखो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेल्स एग्जीक्यूटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आपका प्रोफाइल मैच होना चाहिए इससे, ठीक है। अगर आपने सेल्स में कभी काम ही नहीं किया, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस ही नहीं है, प्लीज डू नॉट अप्लाई, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है नहीं, दिस इज मैचिंग माई प्रोफाइल, सो हाउ कैन यू हाईलाइट योर रेज्यूमे, तो आप क्या कर सकते हो, आप जब रेज्यूमे बनाओगे तो साथ में एक कवर लेटर भी बनाओ, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई पर्सनली फील वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें क्लियरली मेंशन करो। कवर लेटर क्या होता है गाइस? कवर लेटर इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, आप उसमें 7 से 8 लाइनें लिखते हो, सिर्फ, ज्यादा नहीं, नॉट मेकिंग इट अ पैराग्राफ, स्टोरी नहीं बनाओगे उसमें, थोड़ी बहुत ब्रीफ रखोगे उसको, एंड उसमें आप अपने पूरे करियर के बारे में उसमें लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 6 years in sales. I started off with this industry. Currently, I'm working in this industry. I use these softwares. B2B has been a very common kind of a profile for me, which I have been working for so many years. ठीक है, so आप क्या करोगे, ऐसे 7 to 8 लाइन्स में उसको एकदम ब्रीफ करके, शॉर्ट करके बराबर से रखोगे, दिस इज वॉट वी यूजुअली एक्सपेक्ट। ओके, वी यूजुअली एक्सपेक्ट दिस। सो क्या करेंगे, एंड वो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको अटैच करके भेजोगे रेज्यूमे के साथ, ठीक है। अब जो आप मेल डाल रहे हो, यूजुअली सी गाइस, देयर आर 2 थिंग्स, या तो आप naukri.com वगैरह पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो तो आप अपलोड करोगे आपका रेज्यूमे और आपका कवर लेटर, ठीक है। सेकंड, अगर आप ईमेल डाल रहे हो एचआर के आईडी पे, अगर ईमेल डाल रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मेल के बॉडी में भी यही चीजें डालो जो आपने थोड़ी बहुत कवर लेटर में डाली है, ठीक है। सो दैट जब मैं मेल ओपन करूं, मुझे ऊपर क्लियरली मेल का टाइटल ही आप ये डालो, एप्लीकेशन फॉर जॉब सेल्स एग्जीक्यूटिव, बस दैट्स इट। तो मुझे क्लियरली दिख जाए, ओके समवन अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन, आई विल ओपन इट। ओके, ओपन किया, उसके बाद आपके मेल बॉडी पे क्लियरली लिखा है कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपको ये आता है, जो भी एचआर ने एडवर्टाइजमेंट में चीजें डाली थी जो कंपलसरी है, आपने वो चीजें मेंशन की है, तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली रेज्यूमे बहुत अट्रैक्टिव बन गया। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, अट्रैक्टिव रेज्यूमे वो होता है जो मेरी रिक्वायरमेंट है आप वो पूरी कर रहे हो, दैट्स इट, और कुछ अट्रैक्टिव नहीं होता है उससे ज्यादा। तो मैं इमिजिएटली जाऊंगी उनके रेज्यूमे में, मैं चेक करूंगी, आई विल सी, ओके वाओ, दिस पर्सन हैज एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, कहाँ काम किया है उसने, ओके ये सॉफ्टवेयर उसको आता है, ठीक है, उसने एमबीए किया है 2 साल का फुल टाइम, ओके। सो दिस इज द थिंग दैट आई कैन सी। एंड B2B उसने कॉर्पोरेट्स में काम किया, कौन से कॉर्पोरेट्स के वहां, मतलब इससे कौन से कंपनी में काम किया और कितने साल का B2B एक्सपीरियंस है उसको, ओके मैंने पूरा देख लिया, आई रियली लाइक द रेज्यूमे। ये पर्सन रहता कहाँ है, कैन ही ट्रैवल टू अ लोकेशन, इमीडिएटली आई विल कॉल द पर्सन। सैलरी कितना है, क्या है, वो कोई भी रेज्यूमे में कवर लेटर में मेंशन नहीं करता है गाइस, बट आई विल डेफिनेटली कॉल द पर्सन, और मैं उसको बोलूंगी कि बिकॉज मैं क्यों, सैलरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बिकॉज मैंने अपने एड में मेंशन किया होगा कि दिस इज द बजट दैट वी हैव, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेट बजट हर एचआर मेंशन करती है, बिटवीन 10 to 12 lakhs या 10 to 15 lakhs। सो आई नो कि अगर मेरा सैलरी उससे कम है तो आई नो मैं वो बजट में फिट हो जाऊंगी, राइट। सो आई विल डेफिनेटली कॉल द पर्सन। सो माई पॉइंट हियर इज गाइस, कि जो भी चीजें आपको लगे कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ के कि ये जरूरी है, ठीक है, प्लीज पुट दैट इन योर रेज्यूमे, ठीक है। अभी टेल मी वन थिंग, कल जाके ऐसा होता है कि एक एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जहां पे अब मुझे एटीएस रेज्यूमे बनाना है, ठीक है, एटीएस इक्विप्ड, ओके। एटीएस का एक रूल है गाइस, ओके, एटीएस क्या होता है, आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली उसके थ्रू ना बहुत सारे रेज्यूमेस पास होते हैं, इट्स अ सॉफ्टवेयर, वहां से रेज्यूमेस पास होते हैं, ठीक है। एटीएस में एज एन एचआर मैं क्या करती हूँ, मैं कीवर्ड्स डाल देती हूँ, ठीक है। आपको पता है रिक्रूटमेंट ना कीवर्ड्स के थ्रू चलता है हमेशा, ऑलवेज, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। सो रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज थ्रू कीवर्ड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, कीवर्ड्स के थ्रू चलता है, मतलब जैसे कि मैं कीवर्ड डाल दूंगी सेल्स एग्जीक्यूटिव, 5 years एक्सपीरियंस, नोज दिस सॉफ्टवेयर, एमबीए, देन उसके बाद B2B एक्सपीरियंस, ओके, या मुझे B2C चाहिए तो मैं वो भी डाल दूंगी, ठीक है। मैंने कीवर्ड्स डाल दिए, मुंबई लोकेशन, सो अब मुझे बस वही रेज्यूमेज आएंगे जो ये कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। नाउ एटीएस भी वैसा ही चलता है, एटीएस में मैंने कीवर्ड्स डाल दिए,
अब जो रेज्यूमेज ये कीवर्ड्स पास कर पाए वो मेरे पास आ जाएंगे, जो नहीं पास कर पाए इट विल ऑटोमेटिकली गो इन माय जंक बॉक्स, दैट इज हाउ एटीएस वर्क्स, ओके। इट इज बेसिकली सेविंग द टाइम ऑफ अ रिक्रूटर कि मुझे सब नहीं देखना पड़े, ओके। जो मुझे बहुत सारे कीवर्ड जैसे लग रहा है कीवर्ड्स के थ्रू वो पास हो पाए, दैट इज द ओनली रेज्यूमेज दैट आई गेट, ओके। इट्स सेविंग टाइम बेसिकली। सो नाउ इमेजिन आपके रेज्यूमे में आपने जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा, ठीक है, एंड जॉब वो कीवर्ड्स क्या होते हैं ना गाइस, वो वही कीवर्ड्स होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में दिए होते हैं, ठीक है। आप क्या करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि कोई कंपनी के एटीएस सॉफ्टवेयर से मेरा रेज्यूमे पास हो। आप क्या करो, उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा ना, हमको पता है कि जब हम रेज्यूमे बनाते हैं, आई विल शो यू द रेज्यूमेस, मैं आपको सिर्फ अब बता रही हूँ, जब हम रेज्यूमे बनाते हैं कोई भी कंपनी के नीचे आप लिखते हो थोड़ी लाइंस कि अगर जैसे कि मैंने काम किया अगर एरीज में एज अ एचआर बीपी, तो मैं अपने रेज्यूमे में एरीज लिखूंगी, एचआर बीपी लिखूंगी, उसके नीचे मेंशन करूंगी कि मैंने एरीज में क्या काम किया है, ठीक है। तो थोड़ा एटलीस्ट 6-7 लाइन्स या 10 to 12 लाइन्स का मैं मेंशन करूंगी माई वर्क देयर, ओके, माई रिकमेंडेशन टू यू, ओके। आप उस कंपनी के एड में जाओ, ओके, जैसे भी आपने अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे काम किया लास्ट कंपनी में, एंड यू नो कि आपका प्रोफाइल सेम था जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, ठीक है। अगेन मेकिंग इट वेरी क्लियर गाइस, अगर आपने काम नहीं किया है तो ये मत करना, झूठ मत लिखना, डोंट लाई अबाउट इट, बिकॉज अभी तो रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा बट जब इंटरव्यू के लिए जाओगे फेल हो जाओगे। दिस आई एम सेइंग कि कभी कभी क्या होता है, मैंने अपना जो कंपनी के नीचे जो लाइंस लिखे हैं वो मैंने रैंडमली लिखे हैं, ठीक है, बट मुझे अब वो लाइंस को अलाइन करना है कंपनी के रिक्वायरमेंट से। तो मैं क्या करूंगी, एचआर ने जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो मैं कॉपी पेस्ट करूंगी और अपने करंट कंपनी जहां मैं काम कर रही हूँ उसके नीचे वही जॉब डिस्क्रिप्शन, तो ऑफकोर्स एग्जैक्टली सेम नहीं डालूंगी बट ऑलमोस्ट सेम सिमिलर करके डाल दूंगी, थोड़े लाइंस इधर उधर करके। सो टुमारो व्हेन एटीएस के थ्रू मेरा रेज्यूमे जाता है, वो कीवर्ड्स वो पिक कर लेगा मेरे करंट वर्क प्रोफाइल से, एंड आई विल गेट शॉर्टलिस्टेड। दैट इज द मंत्रा योर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो मैं 10 कंपनी में अप्लाई करूँ, सबका अलग होता है, तो क्या सबके हिसाब से बदल दूं? सी गाइज, अगर आपको लग रहा है 2 या 3 कंपनीज को ऑलमोस्ट सेम है, काम सेम है, इसलिए प्रोफाइल भी सेम है, एडवर्टाइजमेंट सेम है, जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है ये सब कंपनी का काम सबका सेम है बट सबका थोड़ा रिक्वायरमेंट, मतलब वर्डिंग्स थोड़े काफी अलग अलग है, कीवर्ड्स जो है ना वो अलग अलग है, यस माय रिकमेंडेशन वुड बी आप सबके लिए रेज्यूमे चेंज करके भेजो। इट डजेंट टेक टाइम, नाउडेज वी हैव मेनी सॉफ्टवेयर, चैट जीपीटी ही कर देता है, डजेंट टेक टाइम, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज आप चेंज करके भेजो, बिकॉज एट द एंड द मोटिव इज यू शुड गेट नोटिस्ड, राइट, आपका रेज्यूमे नोटिस होना चाहिए, दैट इज द मोटिव, राइट। एंड वो सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपके कीवर्ड्स कैच हो पाए, तो अगर कैच नहीं हो पाएंगे देन डेफिनेटली आपका रेज्यूमे जंक में चल जाएगा, इवन आफ्टर यू हैविंग द एक्सपीरियंस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ओके, अगेन एज आई मेंशन्ड डियर गाइस, ऑलवेज रिमेंबर आपका रेज्यूमे ना एक एडवर्टाइजमेंट जैसे लगना चाहिए, ये याद रखो। आपको पता है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जो बहुत लॉन्ग होती है, बहुत बोरिंग होती है, एंड एट द एंड ना मुझे समझ ही नहीं आता इनका मैसेज क्या था, एंड आई डोंट रिमेंबर दैट प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट को याद ही नहीं रख पाती हूँ एट द एंड, बिकॉज वो कैची नहीं थी उसकी लाइन्स, एंड जो मैसेज वो देना चाहते थे वो क्लियर नहीं था, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट देखो जो बहुत लाइन उसकी कैची है, एंड बहुत शॉर्ट है, बट इमिजिएटली वो एडवर्टाइजमेंट सुनने के बाद मुझे इमिजिएटली वो याद रह गई लाइन, एंड मुझे समझ आ गया वो क्या सेल करना चाहते थे, व्हाट वाज देयर मैसेज, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। दैट इज हाउ योर रेज्यूमे शुड बी। रिमेंबर गाइज, इफ यू आर सेंडिंग योर रेज्यूमे टू योर कंपनी, एनी कंपनी, यू आर सेलिंग योर सेल्फ, इट्स अ रियलिटी, हम बेच रहे अपने आप को वो कंपनी को, बिकॉज वी नीड द जॉब, राइट। सो इफ यू आर सेलिंग, सी टू इट कि आप अपना रेज्यूमे और अपना, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट शॉर्ट एंड क्रिस्प और एंटरटेनिंग बनाते हैं, कीप योर रेज्यूमे शॉर्ट, क्रिस्प एंड अप टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑलराइट, सो आई विल जस्ट शो यू गाइज, मैं एक टेम्पलेट बताऊंगी, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ सिस्टम। आजकल यू हैव सॉफ्टवेयर, यू हैव मेनी वेज यू कैन कैनवा के थ्रू और ओवरलीफ के थ्रू और चैट जीपीटी के थ्रू आप आजकल बहुत इजीली रेज्यूमेस बना सकते हो, ओके। हाउएवर दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड बट पर्सनली आई फील दिस रियली वर्क्स,
I'll show you this, okay? I'll show you कि अगर आप एक फ्रेशर हो और आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, आप लोग के रेज्यूमे में मेन डिफरेंस क्या होगा, ओके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ रेज्यूमे, एंड कौन सी चीजें जो आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट. All right. Let me just give me a minute, guys. I'm just sharing my screen. So this is the link that is there. Google Docs का link है ये, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा ये बहुत पुराना है एंड इसमें बहुत बेसिक रेज्यूमे बनता है. बट ट्रस्ट मी, आई स्टिल लाइक इट. मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इजी है. ज्यादा कुछ भी टेक्नोलॉजी का झंझट नहीं है इसमें, एंड इट रियली वर्क्स वंडर्स. ओके, सो इफ यू वांट टू गो फॉर, इफ यू गाइस हैव नेवर मेड अ रेज्यूमे एंड यू वांट टू मेक अ क्विक रेज्यूमे, दिस इज द लिंक यू कैन डेफिनेटली यूज, राइट? If you want, I will just share this link in the chat box so that you guys can also use it. जब आप ये लिंक को एक्सेस करेंगे गाइस, व्हाट यू नीड टू डू इज बेसिकली आपको उसमें लॉगिन करना पड़ेगा. आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए. एक बार आप लॉगिन करेंगे आपकी ईमेल आईडी से, यू विल बेसिकली गेट करेंगे, आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे गाइस. व्हेन यू गेट सो मेनी टेम्पलेट्स, आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सिलेक्ट द टेम्पलेट यू वांट टू गो फॉर. ओके, एंड देन डेफिनेटली उसके बेसिस पे आप सब डिटेल्स भर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं. सो आई हैव लॉग्ड इन. I hope my screen is visible, everyone. Okay, so I have logged in here. Okay, this is the template that I have selected. You can see there are many templates here. Okay, I have selected this template. Okay, मुझे ये suitable लगा, which is this template, and I have selected it. Right now, this is the basic template of any resume, guys. ये बहुत basic template है. As a fresher, as a even an experienced person, आप ये template use कर सकते हो. It works very nicely. ठीक है? Definitely. What are the things that are going to include here in your resume? सबसे पहले कोई भी resume में आपका नाम आएगा, ठीक है? उसके नीचे आएगी एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन. ऑलवेज रिमेंबर गाइस. ओके, सो आई एम वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर. तो मैं लिखूंगी यहाँ हीना सुरेश, मैं उसके नीचे लिखूंगी ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर. अगर आप सेल्स जैसे काम कर रहे हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, सो वट एवर योर प्रोफेशनल करियर लाइन और डेजिग्नेशन इज, ओके, यू विल पुट इट योर बिलो योर नेम. ठीक है, यहाँ आप आपका एड्रेस डालोगे, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी. ओके, प्लीज गाइज वन कॉल आउट योर ईमेल आईडी प्रोफेशनल बनाओ. आई अंडरस्टैंड व्हेन वी मूव आउट ऑफ कॉलेज email IDs can be little glam girl or superhero boy or something that way. Do not use such email IDs while you all are moving out for jobs. Please keep it very professional. Keep your name, your date of birth or your numbers @gmail.com or simply your name and surname dot at gmail.com. अपना email ID बहुत professional रखो. That's extremely important when you put it in your resume. ठीक है? If you all are trying abroad, you can also put your Skype ID here. Very important. Okay. If you guys are doing any kind of social media jobs, ठीक है, आप content create करते हो या आप influencer हो, anything that way, and you want to show your Instagram page or your Twitter page or Facebook page, you can always paste the links here. यहाँ पे आप नीचे अपनी email ID के नीचे आपके links, जो भी आपका work related handles है, आप उसको paste कर सकते हो यहाँ पे. Okay, so this is important here. Next comes your experience. All right, you can see many experiences that I have mentioned here, guys. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर इज कि आप जो एक्सपीरियंसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम योर करंट एक्सपीरियंस, जहां पे आप करंटली काम कर रहे हो, ओके, प्लीज मेंशन दैट फर्स्ट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ओके, आप सबसे जो लेटेस्ट कंपनी है वो मेंशन कीजिए, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, जो उनकी करंट कंपनी है उसको लास्ट कर देते हैं और फर्स्ट कंपनी को पहले करते हैं. आई हैव सी एज एन HR, अगेन मैंने बोला मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उल्टा देखूं कि अरे ये अभी यहाँ काम कर रहा है तो पहले कहाँ काम कर रहा था. एंड ट्रस्ट मी, ये तो एक ही पेज पे आ रहा है, लोग ऐसे दूसरे या तीसरे पेज पे डालते हैं करंट कंपनी को. आई डोंट इवन बॉदर लुकिंग एट इट. ठीक है, मैं वो रेज्यूमे छोड़ देती हूँ. डोंट डू दैट. जहां आप करंटली काम कर रहे हैं वो कंपनी का नाम, उसका लोकेशन, आपका क्या जॉब टाइटल है वहां पे, यहाँ पे मेंशन कीजिए. ठीक है, देन गो रिवर्स. आपकी उससे पहले कौन सी कंपनी थी, फर्स्ट कंपनी कौन सी थी, गो दैट वे. ओके, सो यू ऑलवेज गो ऑन द डिसेंडिंग ऑर्डर. देन आप कौन से मंथ से कब तक काम करें. सो ऑफकोर्स अगर आप करंट कंपनी है तो कौन से मंथ से प्रेजेंट लिखोगे, एंड सेम वे यू आर गोइंग टू मेंशन द मंथ्स एंड ईयर्स हियर. ठीक है, ऑफकोर्स वो कंपनी के नीचे. ओके, चंदन, ऑफकोर्स वी हैव 10-15 minutes more and then after that I'll take the questions, don't worry.
यहाँ पे कंपनी के नीचे आप मेंशन करोगे यहाँ पे व्हाट आर योर वर्क प्रोफाइल, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ कैरी कर सकते हो, मतलब सॉरी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दैट इज व्हाट आई मेंट। ये जो है यहाँ पे मंथ और ईयर के पीछे नीचे आप देख सकते हो, आपको थोड़ी लाइंस लिखनी पड़ती है, वेरी ब्रीफ गाइस, पूरे पेजेस मत लिखो क्योंकि रेज्यूमे बहुत शॉर्ट होता है। ब्रीफ में पॉइंटर्स, पॉइंटर्स बनाओ, ठीक है, और बुलेट शॉर्ट्स बनाओ, एंड बुलेट शॉर्ट्स में अपने पॉइंट्स लिखो कि आप क्या ब्रीफली करते हो आपके करंट प्रोफाइल में, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ओके। सेम वे आपको ऐसे पूरा सब जगह आपके बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, दैट व्हाट यू डू करेंटली, ओके। राइट में आते हैं स्किल्स, ओके। स्किल्स में अगेन यू नीड टू मेंशन व्हाट आर द स्किल्स दैट यू हैव रिलेटेड टू योर जॉब गाइज, ओके। सी गाइज, अपने जॉब के रिलेटेड देयर कैन बी मेनी स्किल्स, जैसे कि अगर मैं एचआर में हूँ देन employee performance management is my skill, recruitment is my skill, compensation and benefits monitoring is my skill, okay. Grievance handling is my skill, okay. Then definitely training and development is my skill, all right. So these are my skills, मतलब ये skills मेरे काम के related है। skills मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, आप बोलो honesty या आप बोलो something related to your character, वो skills नहीं होते guys। स्किल्स मतलब आपके काम के रिलेटेड कौन सी चीजें जो आपको आती है वो आप स्किल्स में लिखोगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, मतलब आपके प्रोफाइल के रिलेटेड कौन से एकदम सूटेबल स्किल्स होते हैं, चैट जीपीटी करो, ठीक है। बट प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, डू नॉट पुट स्किल्स लाइक एज आई टोल्ड यू, ये स्किल्स मत डालना, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डोंट पुट सच स्किल्स, ये स्किल्स नहीं है। आपके काम के रिलेटेड क्या काम है जो आप कर सकते हो, आपको क्या चीजें आती हैं, ओके, दैट यू नीड टू मेंशन हियर, ऑलराइट। ऑफ कोर्स हियर यू कैन मेंशन, if I go down, you can mention the education that you have, okay. So your school name, the location, degree, very very important, okay. सी गाइज, देयर आर टू थिंग्स, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, ठीक है, आपको 10th एंड 12th लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ग्रेजुएशन से स्टार्ट करो, पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं तो, जैसे कि एड ऑन, फॉर एग्जांपल एज आई टोल्ड यू, एनी वन ऑफ यॉल हुज एनरोलिंग फॉर द एचआर कोर्स विद अस, यू नो, अगर आप एक सर्टिफिकेट, दिस इज अ सर्टिफिकेशन कोर्स, राइट। एंड आजकल के टाइम पे गाइज सर्टिफिकेशन कोर्सेज सब करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपग्रेडेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप भी एमबीए, तो एकदम ऐसा कॉमन चीज है आजकल, सो अगर आपने भी एमबीए किया लाइक एवरीवन एल्स, तो व्हाट इज डिफरेंट इन योर रेज्यूमे, दैट इज द रीजन एवरीवन गोज फॉर सर्टिफिकेशंस नाउडेज, वो क्योंकि वो आपके प्रोफाइल को अपग्रेड करता है एज कंपेयर टू द अदर्स, राइट। तो आपके जो भी सर्टिफिकेशन है वो आप मेंशन करो। यहाँ पे ऊपर यूजुअली आप लिखोगे कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, जो लास्ट डिग्री आप वो मेंशन करोगे, कब से कब तक था, ठीक है। एंड उसके नीचे जो प्रीवियस डिग्रीज है आप वो मेंशन करोगे, ओके। प्रोजेक्ट्स लिखोगे, आप कोई भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे आपने काम किया है, डेफिनेटली देयर वुड बी सर्टेन प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव वर्कड ऑन, सो योर प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग विल बी योर, ओके, एंड अ लिटिल अबाउट दैट प्रोजेक्ट, ओके। राइट साइड में, इफ यू हैव रिसीव्ड एनी अवार्ड्स, आपने अगर कोई भी अवार्ड्स आपको मिले हैं, देन यू कैन मेंशन इट हियर। अगर आप बोलोगे मैम मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है, देन यू डोंट रियली नीड टू पुट एनीथिंग, इट्स ओके, आप उसको छोड़ दो, ठीक है। लैंग्वेजेस मेंशन करो, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई पर्सनली फील गाइज, बिकॉज समटाइम्स बहुत ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन ही चाहिए, बिकॉज ऑफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट या बिकॉज ऑफ द लोकेशन, सो लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड मेंशन हियर, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल एक्सपेक्ट दैट आप मेंशन करो, ओके, व्हेन यू आर मेकिंग अ रेज्यूमे, okay. Now there will be a difference between the resume of a fresher and there will be a difference between the resume of a experienced person, okay, definitely, all right. Okay, now guys, when I talk about जब मैं बात करती हूँ अवार्ड्स की, अगर आप बोल रहे हो कि अवार्ड्स नहीं है कोई भी, फॉर इंस्टेंस, यू कैन ऑल्सो मेक इट एज अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट्स कुछ भी हो सकता है गाइस, कॉलेज में आप हेड कर रहे थे कोई कमिटी को, ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई कमिटी का पार्ट थे, यू आर हेडिंग सम कमिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनीथिंग कैन बी योर अचीवमेंट विच एवर यू फील, ओके। आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल, नाउ यू विल सी द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आई वॉज हैंडलिंग द सोशल मीडिया फॉर देम, ठीक है। सो अगर मैं अपने अचीवमेंट में लिखूंगी आई मैनेज द फेसबुक पेज, दैट्स इट। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ अपने अचीवमेंट में, या दूसरा तरीका है उसको लिखने का,
I revamped a business page on Facebook that led to over 70,000 followers, up to 40% increase in 2 months. Okay. And because of which the revenue increased by 4%. Okay. You see the difference, guys. एक पर्सन लिखता है आई मैनेज देयर फेसबुक पेज, दूसरा पर्सन लिखता है कि मैंने उनका पेज मैनेज किया, उनके फॉलोअर्स बढ़ गए 2 महीने में 70,000 से, उनकी वजह से उसका रेवेन्यू बढ़ गया. ठीक है. इमेजिन. तो व्हाट डू यू फील एज एन एचआर? आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, राइट. मैं डेफिनेटली मैनेज फेसबुक पेज, मतलब मेरे को वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट समवन हु इज यूजफुल टू मी, समवन हु इज गोइंग टू बी यूजफुल टू मी, राइट, समवन जो बेसिकली जिसे सब मैनेज करके जिसने रेवेन्यू कमाया कंपनी के लिए, फॉर मी दैट पर्सन इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल. सो सी टू इट गाइस, जब भी आप मेंशन करो आपके रेज्यूमे में कुछ भी डिटेल, अगर आप नंबर्स डाल पाओ और डिटेलिंग में उसको मेंशन कर पाओ तो नथिंग लाइक इट, वो बेस्ट होता है. इफ यू कैन पुट नंबर्स इनटू दैट, दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग. ओके, ट्राई एंड पुट नंबर्स. ओके, ऑलराइट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन अगर आप फ्रेशर हो एंड बेसिकली आप experienced person ho. Okay, then what are the differences that you can do? Okay, so guys, if you are a fresher, okay, first of all, very important is, as I told you, one second, I'm just sharing my page again. Can you all see my page? Can you see the resume again? Okay, I hope the resume is visible, guys. Yes, ma'am, it's visible. Thanks. Okay, so guys, अगर एक fresher की resume की बात करूँ, so this is a normal resume that I spoke about. Okay, if today I am talking about a resume which is of a fresher, okay, few things which is very important. आप यहाँ पे एक्सपीरियंस से पहले एजुकेशन लिखोगे. ठीक है, so you will write your name. Okay, you will write the title below जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, बिकॉज आप फ्रेशर हो, डेफिनेटली आपने काम नहीं किया है. व्हाट इज द टाइटल यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप वो मेंशन करोगे. ठीक है, उसके नीचे आप लिखोगे एजुकेशन, या एक्सपीरियंस की जगह पे आप लिखोगे एजुकेशन, स्कूल का नाम, लोकेशन, डिग्री. अब जैसे मैंने बताया, अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको 10th and 12th मेंशन नहीं करना पड़ेगा. यू कैन जस्ट मेंशन योर ग्रेजुएशन एंड योर लेटेस्ट डिग्री एंड योर सर्टिफिकेशन. बट अगर आप फ्रेशर हो गाइस, I will want you to mention your 10th percentage, your 10th college, from where you did your 10th, 12th, same with 12th, your graduation, your post graduation, and if you have done any certifications. सब details में मुझे जानना होगा. See guys, we need to understand, अगर आप fresher हो तो definitely HR expect नहीं करता है, क्योंकि आप फ्रेशर हो, एचआर डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप जो हो वो बेसिकली बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस लेकर आओ. वी नो यू आर नॉट एक्सपीरियंस, राइट, आपको कुछ भी काम नहीं पता है. बट हमारे लिए मैटर क्या करता है वो टाइम पे, कि आपका एजुकेशन जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे होना चाहिए. ठीक है, अगर मुझे चाहिए एक बीकॉम का पर्सन और मुझे एमबीए पर्सन चाहिए तो वो होना चाहिए, एंड इफ आई वांट कि वो पर्सन का ये परसेंटेज होनी चाहिए तो वो दिखने चाहिए. गॉट इट. सो एज अ फ्रेशर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन दोज डिटेल्स. ओके, अब एक बार आपका एजुकेशन हो गया, उसके नीचे आप एक्सपीरियंस डाल दो. अब आप में से बहुत लोग ये होंगे, पूछ रहे होंगे मुझे कि मैम मैं अपना एक्सपीरियंस तो यहाँ पे डाल देता हूँ, बट बेसिकली मैंने सिर्फ कॉल सेंटर में काम किया है या मैंने ट्यूशंस लिया है घर पे, तो कैन आई पुट दैट? ओके, डेफिनेटली यू कैन गाइज. ओके, सी गाइज, नो वर्क इज स्मॉल और लेस. ओके, आप ये मत सोचो कि यार मैं सेल्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एचआर के लिए कर रही हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस में कैसे डालूं. सी इंपॉर्टेंट इज, इवन एज एन एचआर आई नो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर आपने कहीं पे भी काम किया, इट बेसिकली शोज कि आपका, मेरे को ये पता चलता है कि यू हैव द ड्राइव टू वर्क, आपका मन, मोटिव है. व्हाट इज योर एटीट्यूड, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क इज समथिंग दैट आई कैन सी. सो पुट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इररिस्पेक्टिव आपने कुछ भी काम किया, पुट इट देयर. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगेन इफ आई टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स, आपने कोई भी इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट्स किए हो. ठीक है, डेफिनेटली आपने एमबीए किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है आपको स्कूल या कॉलेज देता है, जो आपने काम किया है जिस पे, यू कैन पुट दोज प्रोजेक्ट्स देयर. ठीक है, वंस यू हैव पुट दोज प्रोजेक्ट्स हियर, ठीक है, आपने एक बार आपका प्रोजेक्ट्स भी पुट डाउन कर लिया. ऑलराइट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल हैव टू डू इज बेसिकली स्किल्स आप मेंशन कर सकते हो. बट अगेन आप बोलोगे कि मैम मैंने तो स्किल्स अगर मैं मेंशन करूंगी तो मेरे पास काम के रिलेटेड कोई स्किल्स नहीं है.
बट अगर आप सेल्स में जाना चाहते हो, एचआर में गाइस, व्हाट आर द थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, दिस इज व्हाट आई विल बी एक्सपेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स में जाना चाहते हो तो कस्टमर रिलेशनशिप इज योर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स इज योर स्किल, फॉरवर्ड थिंकिंग इज योर स्किल। अपने आप को डिस्क्राइब करो, ठीक है, बट ऐसे वर्ड्स में नहीं, ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस जैसे वर्ड्स नहीं, ठीक है। इट हैज टू बी कम्युनिकेशन स्किल्स, इट हैज टू बी क्रिटिकल थिंकिंग, यू नो, सच काइंड ऑफ स्किल्स यू नीड टू डिस्क्राइब, ओके। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल या आप यहाँ पे ग्रीवेंस मैनेजमेंट वो नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू हैव नेवर डन दैट। बट आपके स्किल्स ये रहेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन से स्किल्स है, ठीक है। सो यू नीड टू, अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल, आपके पर्सनैलिटी के जो स्किल्स है, यू नीड टू हाईलाइट दैट देयर, ओके। अवार्ड्स, आपने अगर अवार्ड्स नहीं है, इट्स ओके गाइज, ओके। यू कैन मेंशन अदर अचीवमेंट्स योर, अवार्ड्स चेंज करो, अदर अचीवमेंट्स डालो। डेफिनेटली आई एम श्योर आपके कॉलेज में बहुत सारी अदर अचीवमेंट्स होंगी जो आपने यूज, वो जो आपके लिए बहुत ज्यादा सर्टिफिकेटेड होगी, एंड यू वुड हैव गॉट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज सम फेस्ट इन योर कॉलेज विच यू वर लीडिंग, or you were a part of something, or you were a leader or leading some kind of a um, some kind of a quiz competition or something that way, so there can be many other achievements. For example, you have received a award in Kathak as a dance, or you are an excellent guitarist, आप वो भी मेंशन कर सकते हो गाइस यहाँ पे। एज अ फ्रेशर, आपके पर्सनल चीजें जिसमें आपको अचीवमेंट लग रहा है, यू कैन मेंशन इट। एंड गाइस, दिस इज इवन फॉर प्रोफेशनल्स जो एक्सपीरियंस्ड है। अचीवमेंट्स में आपका अगर कोई पर्सनल अचीवमेंट है विच यू हैव डन, यू कैन मेंशन इट योर, ओके। Plus, last is the languages part of it. Languages, I will expect everyone to mention. It would be great. Okay. So this is the difference that happens if I talk about, a fresher's resume and a person who is basically not a fresher. That is the main difference that happens between them. Okay. Definitely, this is the app that I gave you. You can use it. You can also use ChatGPT, guys. Okay, that is also very useful. Okay, I have also mentioned here, guys, that आपने कोई competitive exams दिए हैं अगर, okay, अगर आपके additional column में आप लिखना चाहते हो, this I told you. If you have worked in college with any website maintaining, newsletter maintaining for them, कोई blog बनाया है आजकल, we are like everyone is on social media, and most of us are making YouTube vlogs, or you're making Instagram vlogs, so definitely if you're a vlogger and you have, that is like a personal kind of a skill that you have, you can also mention that then. Okay, so that is very, very important, which you need to do. Very, very important after this is, guys, you need to proofread it. Very, very important. What is proofreading, guys? Proofreading is nothing more but to understand that आपने जो भी लिखा है उसके बाद you need to see to it कि आप उसको ऑनलाइन जाओ एंड चैट जीपीटी में क्लीन करो। ऑफ कोर्स देयर वर साइट्स अर्लियर जहाँ पे आप ग्रामेटिकली एंड ऑल साइट्स वर देयर। ग्रामरली इज अ साइट जहाँ पे आप जा सकते हो एंड आप जो अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स ये कर सकते हो। बट नाउ डेज नो वन रियली यूजेस दैट। आप कोपायलट या चैट जीपीटी पे जाके उसको बोलोगे प्लीज क्लीन दिस, वो भी आपको स्पेलिंग एरर्स वगैरह बता देगा एंड यू कैन डेफिनेटली क्लीन योर रेज्यूमेज। ओके, माई सजेशन, पहले खुद बनाओ बट गेट इट क्लीन बाय चैट जीपीटी, बहुत ज्यादा जरूरी है वो। ओके, yes, guys. So I think we will have next 5 to 10 minutes now. I would be ready for questions. One by one, but everyone. Yeah, guys, those who want to ask questions, they can raise their hands, and ma'am will take their names, and then you can ask a Sure. question. Okay, one by Thanks. one. Yeah. Rahul, yes, you can go first. Rahul, are you there? Okay, I can't see Rahul saying anything. Okay. Yes, Yash. Ma'am, is it okay to include experience from a family-owned businesses on Of my course it resume? is. Of course it is. It is perfectly fine. क्योंकि कल आपको इंटरव्यू में अगर वो पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं या आपने क्या किया इतना टाइम, डेफिनेटली यू कैन से कि मेरा फैमिली ओन बिजनेस है एंड मैंने काम किया है उसमें, नथिंग रॉन्ग इन दैट, सो नॉट एन इशू एट ऑल, यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड इट। Yes, Tripti, you want to ask something? Ma'am, Good I have one more evening. question. Yeah, yes. So sorry. बोलो. Ma'am, is it appropriate to mention a failed startup?
आपका स्टार्टअप, failed startup. You're saying failed startup? Yes, ma'am. Yes, you can. Not an issue at all. Okay? Don't worry. You can mention. See, guys, there's nothing wrong. मैं वही बोल रही हूँ. वो थोड़ी आपको जॉब पे नहीं लेंगे यश क्योंकि आपका स्टार्टअप था एंड वो फेल हो गया. दैट इज लाइक योर पर्सनल चॉइस, राइट? वो आपकी चॉइस है कि आपने स्टार्टअप चालू किया बट फॉर सम रीजन मे बी वो आपको इनफैक्ट पूछेंगे इंटरव्यू में उसके बारे में कि व्हाट आर द लेसन्स दैट यू लर्न फ्रॉम ए स्टार्टअप, व्हाई डिड इट फेल. तो ऑफकोर्स यू नीड टू गो प्रिपेयर्ड दैट वे. अगर आप मेंशन कर रहे हो गाइस कोई भी चीज, प्लीज याद रखो उसमें से क्वेश्चंस आ सकते, दे मे आस्क यू अबाउट इट. तो वो आप प्रिपेयर करके जाओ, राइट? बट डेफिनेटली इट डजंट मीन कि आप वो चीजों को ये नहीं कर सकते, मेंशन नहीं कर सकते. यू कैन, नॉट एन इशू. Thank you so much, ma'am. थैंक यू. Trupti, yes, you can go next. Good evening, ma'am. Good evening. बोलिए. Ma'am, I have done my graduation in BTech Biotechnology and now I am pursuing MBA in HR specialization. So, Okay. what experience can I add from BTech Biotechnology to my HR resume? सी डियर, आपने कभी एचआर का कोर्स किया है या कुछ पढ़ा है एचआर के रिलेटेड, या कुछ भी आपको एक्सपीरियंस है, या फ्रेशर हो? Fresher हूँ मैम. ओके. सो अगर आप एक फ्रेशर हो, डजेंट मैटर, आप बेसिकली यही डालो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वही डालो. एंड डेफिनेटली आपको आपके कवर लेटर पे या जहां पे भी आप ईमेल डाल रहे हो आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस इज माय बैकग्राउंड बट आई एम इंटरेस्टेड एज अ फ्रेशर, आई एम इंटरेस्टेड इनटू द एचआर. एंड माय सजेशन इज कि आप कोई कोर्स कर लो एचआर का. इट्स Yes, ऑलवेज ma'am, I बेटर will. गाइस. या इट्स I am ऑलवेज pursuing बेटर. data analytics course right now and I will go for any HR specialization course. Exactly. So definitely, you can take any type of certification or any kind of course of HR, okay? And definitely, as I told you, you all can reach out to us also if you all want any certification courses because these courses also provide you certificates and आपको HR की भी अच्छी खासी knowledge हो जाती है इसके बाद. All right? So definitely you can do that. Yes, ma'am. Can we call you personally for the certification courses? No, I think the operations team is here. They will share the number and details. You can reach out to them. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thanks. Yeah, Yes. students, regarding the training and internship program, the application form will be shared in the chat along with the attendance form. So you can fill that after the questionnaire. Okay, sir. Yes, Monisha, please tell me. Yes, ma'am. Two questions. The first one is what format should we send our CV or the resume in? And the second one is one tip that you would recommend all of us to stand out in our resume, like just to impress the HR on the first go. Okay. See, first thing there, you can always go for a Word document or you can convert the Word into PDF. PDF and words are something that works the most. Okay. So, ये format में आप भेज सकते हो. All right. Second is always send a cover letter. I always recommend that. Second important thing, stand out the resume. I think, see, don't go for too much fancy things. मैंने वही बोला, don't go for fancy fonts, colors, and too many images, but just go for a good photograph of yours. That's also very important, guys. तो इट्स अ चॉइस. मैं ये नहीं बोल रही हूँ फोटोग्राफ कंपलसरी होता है रेज्यूमे में गाइस, बट अगर आप अपना फोटोग्राफ एक प्रोफेशनल वाला, गाइस आई मीन प्रोफेशनल, प्लीज अंडरस्टैंड, एक प्रॉपर प्रोफेशनल फोटोग्राफ खिंचवाया हो आपने अगर रेज्यूमे में डाला है, इट एड्स ऑन टू योर रेज्यूमे. एंड एज आई टोल्ड यू, प्लीज रीड द जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड पिक द कीवर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शंस. अगर आप वो पिक करके रेज्यूमे में प्रॉपरली उसको 2 पेजेस का बनाओगे, आई थिंक योर रेज्यूमे इज डेफिनेटली गोइंग टू स्टैंड आउट. ओके, Okay, ma'am. Understood. Thank you. थैंक्स. यस रितेश. I also had two questions. Yeah. One was that you had mentioned that if we are a fresher, Mm-hmm. then we should mention our education before the experience in our resume. Yes. But what if I have like maybe 2 internships, then and which are better than those Hello. highlight my CV more than my education. So should I prefer putting it up Yeah, you can. above experience? दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन डियर, इट इज नॉट कंपलसरी. ऐसा नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस ऊपर होगा एजुकेशन नीचे होगा तो द एचआर विल रिजेक्ट इट. ऐसा नहीं है. डेफिनेटली यू कैन गो रिवर्स. इट्स यूजुअली व्हाई डिड आई रेकमेंड इट, बिकॉज व्हेन यू आर अ फ्रेशर एंड यू डोंट हैव टू मच ऑफ एक्सपीरियंस, आपका वो हाईलाइट नहीं होता है एरिया. योर एजुकेशन इज समथिंग दैट ओवर पावर्स इट, राइट? बट एज यू आर सेइंग, जैसे आप बोल रहे हो कि आपके पास ऐसा है Thank you, madam, इंटर्नशिप विच इज for वेरी your स्ट्रॉन्ग. information. ओके गाइस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ द वंस हु नॉट स्पीकिंग. अगर आपका इंटर्नशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली आप उसको ऊपर पुट करके एजुकेशन नीचे डाल सकते हो. नॉट एन इशू एट ऑल. अच्छा ठीक है, that is okay. Thank you. ऑलराइट,
Thanks. Yeah. Okay. I have SM High. I can't see your name, dear. Can you tell me your question? Yeah, ma'am. I am Syed Murtuza. Yeah, Ma'am, Syed. ma'am, I have a question that I have built some self-made projects like real-time chat application. I'm a computer science student, Okay. and can I add these projects in my resume as a Of fresher? course you can. Of course you can. Why not? Of course you can. You should. In fact, अगर आपने कुछ out of the way जाके किया, of course you should, because this is your extra skills and capabilities. It's very important. Of course you should. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Malam. Yes, Chinkle. Guys, those who don't have any questions, kindly unmute yourself. Ma'am, Chinkle, you want to? Yes. I'm having three questions. So my first question is, if you have given any competitive exam but you have not cleared it so well, so should I mention it or not? You have not cleared it, मतलब आप फेल हो गए, आप बोल रहे हैं कि आपका स्कोर्स उतना अच्छा नहीं था. No, it's just that my score was not that good that I would have been satisfied with it. तो आप वापस देने वाले हो? Are you going to give it again? No, ma'am. That's okay. So you can mention it. It's not an issue. See, guys, if you're going to give it again, then आप मत mention करो, क्योंकि आपका next attempt में better scores आ सकता है, which you can put. But if you've given, but your score is not satisfactory, but at least you tried, right? You can always mention it there. Not an issue. It's not going to be an issue. Okay, वो ma'am. थोड़ी आपका And स्कोर देख के बोलेंगे कि नहीं आपने कम स्कोर मिला तो हम आपको नहीं लेंगे. That won't matter. okay, ma'am. And my next question is, as you have said that if you have lead any event or anything else, so you have to mention it. But if you don't have any proof and they ask for any proof, then what should we do? नो डियर, कोई प्रूफ नहीं मांगता है. आपने आपने मेंशन किया, कोई भी एचआर प्रूफ नहीं मांगेगी. एजुकेशन का प्रूफ मांगा जाता है, बट आपने कोई इवेंट लीड किया उसके सर्टिफिकेट्स कोई नहीं मांगता है. नो वन डज दैट. डोंट वरी अबाउट इट. यू कैन ऑलवेज से दैट यू डोंट हैव एनीथिंग बट यू आर डूइंग इट. कोई भी प्रूफ नहीं मांगता. आपके एजुकेशन के प्रूफ लगते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के लगते हैं. दीज थिंग्स नो वन आस्क प्रूफ फॉर. डोंट वरी अबाउट इट. Okay, ma'am. And if you have done any internship, but it was all online internship, you don't you haven't went to field for internship. So should I mention it or not? ऑफ कोर्स यू कैन. उसके सर्टिफिकेशंस कोई होंगे तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं उसके साथ. Yes, ma'am. There are project completion and internship completion Yeah. certificates for the So you same. can attach that as well. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Yes, Ayush. Ma'am, quick question. Can we get the recording and the presentation that you showed in the meeting today? Presentation, no, because that is something that belongs to me. But recording, I'm not sure. The operations team will help you with that. So just give Okay, ma'am. us some time. I think at the end the operations team can take up this question. Yes, ma'am. Thanks. Harshal, yes. मेरे को ये पूछना था कि while building a resume कौन सा बेटर रहेगा, like one partition, two partition, like कौन सा ATS फ्रेंडली होता है? See, it depends. आप one partition भी बना सकते हो, two partition भी बना सकते हो. Not an issue. ATS friendly ऐसा specifically ATS picks up the keywords, okay? Partition के हिसाब से ATS नहीं pick करेगा. It usually picks up finds the keywords. So keywords is the more thing that ATS looks at. So it's okay. One partition, two partition won't make any difference then. Yes, Shubham. Ma'am, I just had one question. Like, if anyone is doing an online diploma along with their master's, so it shall be included within the certifications or in the education? If you're doing a diploma with your master's, you will have to include it in your education. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Siona, yes, tell me. Okay. Vidhi? Acha, Hello, Siona? ma'am. Yeah, hi dear, tell me. Yeah, hello, ma'am. Good evening. Good evening. So my question is that I hold a bachelor's commerce degree and I'm currently pursuing a master's degree. So my specialization, my specialization is in human resource, and my professional experience includes an internship as a business risk specialist, which I completed during my undergraduate studies. So should I mention that? Should I include that experience in my resume? Of course you can, dear. Irrespective आप कोई भी experience जो आपने किया है, कुछ भी काम किया, you can mention it. There is no point hiding anything, guys. That is my point. आप छुपाओगे तो आपको job मिल जाएगी, ऐसा तो कुछ ये होता नहीं है, guys. So definitely you can mention it, not an issue. Because it's from different fields, so That's okay. That you can tell ना कि आप ये field में थे, आपने काम किया, but this is the field that you're looking at. Won't be an issue. okay.
Thank you, Yes, ma'am. Abhishek. Thanks, dear. गुड इवनिंग मैम। Good evening. बोलिए। मैम मुझे सिर्फ ये पूछना था कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसको वो मतलब पूरा मैच होना चाहिए, मतलब अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अगर अनमैच होगा तो फिर मतलब हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं? ट्राई कीजिए जो इंपॉर्टेंट चीजें है, जैसे मैंने बताया, जो चीजें नेगोशिएबल नहीं है, मतलब बहुत चीजें ऐसी होती है कि कंपलसरी है, उनको चाहिए ही वो मैच होना चाहिए। कोई चीजें ऐसे है कि ऑप्शनल है, वो नहीं भी मैच हुआ चल जाएगा। बट बहुत चीजें ऐसी होती है कि एचआर वहां पे लिखते हैं कि उनको कंपलसरी चाहिए, वो मैच होना चाहिए, नहीं तो वो सिलेक्ट नहीं होता रेज्यूमे। हाँ मतलब जैसे जो डिग्री है और स्ट्रीम है, मेरा वो कभी कभी मैच नहीं होता है, तो उसके वजह से मैं मतलब मैंने बट अगर जो उसमें हमारे लिखा है कंपलसरी, देन आप ट्राई कीजिए कि अगर कंपलसरी लिखा है तो वो नहीं होगा मैच। बट अगर आप लिख रहा है कि नहीं ऑप्शनल है, चल जाएगा उनको। प्रिफरेबल लिखा है, एक वर्ड होता है प्रिफरेबल, अगर प्रिफरेबल लिखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मैम जो एचआर के थ्रू मतलब जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आता है उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है कि प्रेफरेबल है या फिर कंपलसरी है, कुछ भी नहीं लिखा होता है। मैंने एचआर से भी अपने मतलब कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि जब जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब देखो ना, तो उसमें पूरा सब कुछ मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मैच होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करो, नहीं तो अदरवाइज फिर जो कंपनी है वो शॉर्टलिस्ट कर देंगे आपको। सी अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप अप्लाई कर दो, क्या होगा, कॉल नहीं आएगा एट द एंड। बट अगर उनको कंपलसरी नहीं हो, वो आपको कॉल भी कर देंगे। तो अप्लाई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। हम्म। बट मोस्ट ऑफ देम मेंशन करते हैं, नहीं भी करते तो ओके। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कंपलसरी है या ऑप्शनल है, आप अप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। अगर उनको ऐसे लगेगा कि बाकी चीजें आपके रेज्यूमे में मैच हो रही है रिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री, वो आपको कॉल करेंगे। अच्छा। और मैम मुझे एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी होता है इसकी वजह से, मतलब डिग्री और ये स्ट्रीम की वजह से, मतलब जॉब्स को ढूंढने में भी। ओके, ठीक है। No worries. Ritesh, yes. Guys, I don't have too much time now. Okay, so I would just go for one or two questions more. That's Yes. it. Hi, ma'am. I had a question regarding that ATS platform only. हाँ जी। So, हमारा जो CV होता है, resume होता है, तो उसका one page होना is it necessary to get accepted to No, nothing ATS? like that. But keep it very short. 2 पेज तक maximum रखेंगे. That is more than enough. Don't pull it too long. अच्छा, Ma'am, and we can the skip our school details like 10th or 12th to make it short. You can. अगर आप experienced है, जैसे मैंने बताया, 10th and 12th की उतनी requirement नहीं होती. You can keep it optional, not required. No, uh, no, ma'am. and हाँ जी, बोलिए। Ma'am, I like am actually I'm a fresher. That's why I'm raising this question. अगर आप fresher है, you will have to mention it. Okay. Yes. and ma'am, about the certificates, if I have a few number of certificates, can I just put a Google Drive link somewhere in the You CV? can, you can, you can. If And there's a where should certificate, it you can be? have references column there, references for my Hmm. certificates. आप ऐसे करके डाल सकते हो और वहाँ पे Google Drive लिंक कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, thank you so much. Thanks. Guys, I don't think I'll be taking any more questions now, okay? Because we are out of time. So definitely you all can message your questions to the operations team. I am definitely going to revert back to them. Okay. Uh, Good evening, everyone. I hope you all had a great time with Hina ma'am. Learned a lot about ATS resume and how to make a resume, how to stand out in the industry. So thank you, Hina ma'am, for another great workshop. We'll be seeing you soon for another workshop in the coming months. So Hina ma'am,